Good evening. So today in lecture number 3, what we will see is we will go through some of the circuit analysis, and it is like very much important for the gate examination purpose. So like the topic name is transient analysis. I know that some people feel it very difficult to solve the question of this transient analysis. Okay, so for this transient analysis, we need to have a basic idea about the circuit. Okay, so how does this transients come when we have a DC circuit? Okay, like we don't have a set of resistance and inductances, so there is no transient problem. But when we have a resistance along with a inductance and a capacitance, then we face the problem of this transient. So we need to know what is the behavior of the circuit when a resistance or a inductance or a capacitance, these three combinations are represented in a circuit. So what is the response across the terminals? Okay, so for having the basic idea, first of all I need to introduce you to the Laplace transform. Okay, so Laplace transform is very much important. Laplace transform is very much important. So there are some basic formulas. Okay, first one is, suppose it t, then the it's like suppose if it is t to the power n. Okay, so its Laplace transform is nothing but n factorial of n upon s to the power n plus 1. Okay, similarly if we have e to the power minus of at, its Laplace transform will be 1 by s plus a. If we have e to the power at, Laplace transform will be 1 by s minus a. If we have cos of omega t, we will have s upon s square plus omega square. If we have sine of omega t, we will have omega upon s square plus omega square. Okay, so like in this way we can have our Laplace formulas. There are some more formulas if we need. Okay, in this case, suppose we have a constant. Suppose we have a constant. Okay, so it will have a by s. Okay, so this is how we deal in the Laplace transform. So we will use this Laplace transform to solve our circuit. Okay, so it will help us in the analysis. So now we will move forward. We will see a series RL circuit. A series RL circuit. If this video is very slow, then you can speed it up. Suppose we have a V voltage source, a DC voltage source V, and in series with it we have a R and L. Okay, the current flowing through this is I. Fine. So we need to find the value of I in this circuit. Okay, we need to find the value of I and the behavior of I. How does this I like rise and fall? We need to find this. This is very important. So from KVL, what we can write in this circuit, if we apply KVL, we can write V is equal to IR plus L into di by dt. Okay, so let me tell me one more thing. There is one more formula. Suppose if we have d by dt, okay, of suppose x into it becomes s into x of s minus x at 0 minus. Okay, similarly if we have d to the power n of x upon
dt power n. So its Laplace transform will be s to the power n, okay, x of s minus s to the power of n minus 1 x dash of 0 minus x of sorry now let us not generalize, we will write it as d. Suppose we have d square of x upon dt square, so its Laplace transform will become s square into x of s minus s into x dash of 0 x of 0 minus x of x dash of 0 minus. Okay, so what we will do, we will apply this formula in our circuit. Okay, so what we can write is the Laplace, now we have to take the Laplace transform, taking Laplace transform. Fine. So if we take the Laplace transform, so now from like the formula that is written in point number 6, we can say when there is a constant value, it will have a constant upon s. So we can write v upon s. Okay, and now we are dealing it in Laplace domain. So we need to write it as vs upon s equal to I of s into r plus L, and now di by dt, it will be written as s into I of s into I of s minus I at 0 minus. फाइन, ऐसा हो गया. नाउ व्हाट इज दिस I माइनस I एट 0 माइनस, ये क्या है? ये है इनिशियल वैल्यू ऑफ करंट. इनिशियल वैल्यू ऑफ करंट, दिस इज द इनिशियल वैल्यू ऑफ करंट जो हमारे सर्किट में पहले से था. ठीक है, मतलब जब हमने इस सर्किट में, अच्छा वन थिंग टू नोट डाउन इज, यहाँ पे एक चीज छूट गया हमारा. यहाँ पे हमने एक स्विच दिखाना था. दिस इज एस एंड दिस स्विच क्लोजेज एट टी इक्वल टू 0. ओके, टी इक्वल टू 0 पे ये स्विच क्लोज हो रहा है. तो स्विच के ओपन होने से पहले, फाइन, जो करंट होगा सर्किट में वही आई नॉट माइनस होगा, वही इनिशियल वैल्यू ऑफ द करंट होगा. फाइन. तो अगर हम लोग मान के चलते हैं, सपोज इफ वी consider I 0 minus equal to 0. So what like our equation becomes Vs upon S equal to I of S into R plus L into S into I of S. Fine. So if we take the common, so it becomes I of S common taken, R plus L into S, okay, is equal to V of S upon S. So what is the value, what is I of S? It is nothing but V of S upon S R plus LS. Fine. And we can also write it as like this, Vs upon, we take the L outside common, so it becomes LS into S plus L R by L. Fine. ऐसे भी लिख सकते हैं इसको. Now what we do, अब now we have to, this is in the Laplace domain, and we need to find it into time domain. अब इसको टाइम डोमेन में कन्वर्ट करना है, तो कैसे करेंगे? तो सबसे पहले we need to like do the partial fraction of this equation. तो हम लोग जब इसको पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे तो इसको हम मान लेते हैं, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, v of s अपॉन एल एस प्लस आर बाई एल. ओके, इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं a बाई एस प्लस बी बाई एस प्लस आर बाई एल. ओके, सो नाउ अब हम लोग फाइंड करेंगे वैल्यू ऑफ ए एंड बी. सो ए कैसे निकलेगा? ए इज नथिंग बट v of s upon l
एस प्लस आर बाई एल एट एस इक्वल टू 0। इससे हमको ए का वैल्यू मिलेगा। सो व्हाट वी विल गेट, वी विल गेट v of s upon l into, and now this s equal to 0, so it will become r by l. So this l and l cancel out, so it becomes v of s upon r. Okay, now similarly we will find b. b कैसा निकलेगा, v of s upon l into s at s equal to minus of r by l। ठीक है, बेसिक जो हमारा पार्शियल फ्रैक्शन है उसको इस्तेमाल कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे। So if we put s equal to minus of r by l, we will get v of s upon l into minus of r by l. This l cancel out. It will give us minus of vs upon r. Okay, हमें a और b की वैल्यू मिल गई। a और b की वैल्यू जब मिल गई हमें, so हम लोग इस वाली इक्वेशन में a और b की वैल्यू पुट कर देते हैं। ठीक है, तो क्या मिलेगा, i of s is equal to ए एंड बी। ए क्या था हमारा इक्वेशन, ए अपॉन एस था प्लस बी बटा एस प्लस आर बाई एल। दिस वाज द इक्वेशन। ठीक है ना, तो हम लोग को ए और बी मिल गया। ए क्या था, वी ऑफ एस अपॉन आर था, आर एस, और बी क्या था, माइनस ऑफ वी बाय आर था। ठीक है, वी ऑफ एस अपॉन आर था एंड एस प्लस आर बाई एल ये था। अब देखिए हम लोग यहाँ पे अब क्या लेंगे, नाउ वी विल टेक द हेल्प ऑफ इनवर्स लैप्लस ट्रांसफॉर्म। तो इनवर्स तो देखिए यहाँ पे अगर आप फॉर्मूलाज देखेंगे तो फॉर्मूला में जैसे हमने यहाँ पे 6 नंबर में लिखा, कोई अगर कांस्टेंट वैल्यू है तो उसकी जो होती है अपॉन एस हो जाती है लैप्लस ट्रांसफॉर्म में। ठीक है, तो अगर 1 होगा तो 1 का क्या होगा, 1 बाई एस होगा। तो अगर 1 बाई एस अगर लैप्लस डोमेन में है तो इसको अगर हम लोग इनवर्स लैप्लस ट्रांसफॉर्म लगाते हैं आई एल टी तो हमको 1 मिलेगा। ठीक है, तो उसी तरीके से यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि हमारा क्या है, v ऑफ एस अपॉन आर। ठीक है, और इसके अपॉन में s है, और यहाँ पे क्या है, v ऑफ एस अपॉन आर, इसके नीचे क्या है, s प्लस आर बाई एल। ठीक है, सो अगर हम लोग ध्यान से देखें तो लैप्लस डोमेन में अभी जो मैंने फॉर्मूला दिखाया था ऊपर, तो उससे क्या मिलेगा हमको, ये एक कांस्टेंट वैल्यू की मिलती है ना, तो ये कौन सी वैल्यू होगी, सो इट विल बिकम v बाई आर। ओके, एंड माइनस ये क्या हो जाएगा, v बाई आर। ओके, एक चीज़ ध्यान देने का है, वो ये है कि जब हम लोग लैप्लस डोमेन में कोई भी चीज़ को लिखते हैं तो वो कैपिटल्स में लिखते हैं, लेकिन टाइम डोमेन में स्मॉल में लिखते हैं, तो इसमें स्मॉल, हाँ, v बाई आर। और ये देखिए, ये इसको जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो ये नथिंग, दिस इज नथिंग बट ये फॉर्मूला है e टू द पावर माइनस ऑफ 80 वाले फॉर्मूला पे आ रहा है। ठीक है, e टू द पावर माइनस 80 क्या होता है, 1 बाई एस प्लस ए होता है। सिमिलरली यहाँ पे देखिए s प्लस आर बाई एल है, तो a क्या है, माइनस ऑफ आर बाई एल, तो व्हाट इट विल बिकम, e टू द पावर माइनस आर बाई एल टी। सो दिस इज द फाइनल, ये जो है हमारा आई ऑफ टी आ गया, मतलब ये करंट का इक्वेशन आ गया। फाइन, सो इससे क्या पता चला कि जो करंट है वो कैसे राइज करेगा, जब टाइम इक्वल टू जीरो, टी इक्वल टू जीरो होगा, तो ई टू द पावर इस वाले फॉर्मूला में डालेंगे। जब टी इक्वल टू जीरो होगा, टी इक्वल टू जीरो पे क्या होगा वैल्यू, हमारी ये जो चीज है ये आ जाएगी 1, क्योंकि ई टू द पावर जीरो इक्वल टू 1। सो बी बाई आर माइनस वी बाई आर इक्वल टू जीरो, तो टाइम जब जीरो होगा तो हमारा जो करंट है वो भी जीरो होगा। ठीक है, और जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा, एक टाइम आएगा जब टी इक्वल टू इन्फानाइट हो जाएगा, तो माइनस इन्फानाइट ई टू द पावर माइनस इन्फिनिटी इज जीरो। ठीक है, ई टू द पावर माइनस इन्फिनिटी क्या होगा, जीरो होगा। तो हमारा जो फाइनल वैल्यू आएगा इधर हम लिख देते हैं, एट टी इक्वल टू जीरो आई ऑफ टी इज इक्वल टू वी बाई आर माइनस वी बाई आर इंटू ई टू द पावर जीरो, इट इज नथिंग बट वी बाई आर माइनस वी बाई आर इक्वल टू जीरो। ठीक है, अब टाइम t इक्वल टू इन्फानाइट पे क्या होगा, आई ऑफ टी क्या हो जाएगा, v बाई आर माइनस ई टू द पावर v बाई आर ई टू द पावर माइनस ऑफ इन्फिनिटी। ठीक है, और ई टू द पावर माइनस इन्फिनिटी होता है जीरो,
So we will get V by R minus 0 equal to V by R. So what is the final value of the current? Final value of the current is V by R. Fine. ये क्या होगा? I of t है. This is the time axis. करंट जो है वो ऐसे राइज होगा और फाइनली हमारा ऐसे एक कांस्टेंट वैल्यू अटेन कर लेगा. ठीक है ना? सो दिस इज व्हाट इज दिस इज I of t. तो हमारा जो ग्राफ है वो ऐसे आता है. ठीक है. अब हम एक चीज और देखेंगे. ये ग्राफ आप प्लॉट कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है. ठीक है ना? ना प्लॉट दिस ग्राफ. नाउ वी विल सी वन मोर थिंग. वी कैन राइट दिस इक्वेशन एज I of t is equal to V by R, okay, V by R minus V by R e to the power minus of t upon tau. What is this tau? Tau is nothing but R by L by R. L by R. और इसी को हम लोग क्या कहते हैं? इसी को हम लोग कहते हैं टाइम कांस्टेंट ऑफ द सर्किट. टाइम कांस्टेंट ऑफ द सर्किट. ये एक इंपॉर्टेंट चीज है. एंड टाइम कांस्टेंट क्या है? टाइम कांस्टेंट इज दैट वैल्यू. टाइम कांस्टेंट क्या होगा? वो टाइम जिसमें कोई भी वेवफॉर्म 63.7% ऑफ इट्स फाइनल वैल्यू अटेन कर ले, दैट इज नोन एज द टाइम कांस्टेंट. ठीक है. सपोज अगर इस वाले कर्व में अगर देखें, अगर ये फाइनल वैल्यू यहाँ है, अगर इसका 63% क्या होगा? मान लेते हैं सपोज यहाँ ये पॉइंट है जहां पे हमको 63 पॉइंट समथिंग परसेंट हमको मिलेगा. तो दिस इज नथिंग बट दिस इज टाउ. टाइम जो होगा टाउ, जिसपे हमको 63.7% का मैग्नीट्यूड मिलेगा ऑफ द फाइनल वैल्यू, इज नोन एज टाइम कांस्टेंट ऑफ दैट सर्किट. ठीक है. तो ये इंपॉर्टेंट चीज थी. तो यहाँ से हमको एक आरएल सर्किट का लाइक आइडिया लग गया कि आरएल सर्किट में करंट कैसे होता है. ठीक है. और अगर हम वोल्टेज की बात करें, ओके, अगर हम वोल्टेज की बात करें अक्रॉस द इंडक्टर, इफ वी टॉक अबाउट वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर, सो दिस वाज नथिंग बट करंट थ्रू द इंडक्टर. ये करंट जो था वो कॉमन था ना, और एल के बीच में कॉमन था. तो ये क्या था? करंट थ्रू द इंडक्टर. अब वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर कैसा होगा? हमको पता है कि जो VL होता है वो L इंटू डी आई बाई डी टी होता है. हाँ, अच्छे से पता है. तो L जो भी होगा और डी आई बाई डी टी. अभी क्या है? हमारा I का वैल्यू यहाँ से निकल गया था. फाइन. तो इसको अगर हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, डी बाई डी टी वी बाई आर माइनस ऑफ वी बाई आर ई टू दी पावर माइनस ऑफ टी अपॉन टाउ, इसको अपन डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा? L इंटू ये V बाई आर क्या हो जाएगा? डिफ्रेंशिएशन 0. इसका क्या होगा? L इंटू माइनस ऑफ B बाई आर इंटू, ओके, इसको यहाँ पे अपन ऐसे रहने देते हैं, माइनस ऑफ R बाई L इंटू टी. ठीक है. तो क्या हो जाएगा? इंटू यहाँ पे आ जाएगा, डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, इंटू माइनस ऑफ R बाई एल ई टू द पावर माइनस ऑफ R बाई एल इंटू टी. अब देखिए माइनस माइनस कैंसल आउट, दिस L विल L कैंसल आउट एंड दिस इज नथिंग. तो इट विल कम V इंटू ई टू द पावर माइनस ऑफ R बाई एल इंटू टी. तो हमको क्या पता चल रहा है इससे? ये जो है वोल्टेज थ्रू अक्रॉस द इंडक्टर है, ये कैसा होगा? ऐसा होगा. तो इससे कैसा वेव फॉर्म बनेगा वो भी देख लेते हैं. जब हमारा टाइम है ना फॉर V ऑफ टी, जब V ऑफ टी के बारे में देख रहे हैं, ठीक है, तो सबसे पहले जब टाइम इक्वल टू टी इक्वल टू 0 होगा तो हमारा VL क्या आएगा? V ई टू द पावर माइनस ऑफ 0, माइनस ऑफ 0. तो ये क्या होगा? V आएगा. ठीक है. शुरुआत में जब टाइम इक्वल टी इक्वल टू 0 होगा तो जो वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर होगा कितना होगा? V होगा. एंड व्हेन टी इक्वल टू इन्फिनिट पे देखेंगे तो VL क्या मिलेगा? V ई टू द पावर माइनस ऑफ इन्फिनिटी एंड इट इक्वल टू 0. ठीक है, 0 होगा. तो इसको अगर हम रिप्रेजेंट करें
अगर इसी वाले ग्राफ में अगर हम रिप्रेजेंट करें तो क्या कि करेंट जो है वो सबसे पहले एक वैल्यू है, ठीक है, मान लेते हैं कोई एक वैल्यू है, ब्लू कलर से दिखाता हूँ, V। तो सबसे पहले शुरुआत में जो करंट है वो V से V पे था और फाइनली वो 0 पे आ रहा है। तो करंट जो है, सॉरी, वोल्टेज जो है इंडक्टर का वो ड्रॉप करेगा ऐसे। फाइन। तो कुछ ऐसा प्लॉट हमारा वोल्टेज का। व्हाट इज दिस? दिस इज VL। सो ये एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। और ये सीरीज RL सर्किट है। सिमिलरली हम लोग आगे भी देखेंगे। एक और चीज़ है जो हम लोगों ने यहाँ पे अभी छोड़ रखी है, ठीक है, वो है हम लोगों ने इनिशियल वैल्यू ऑफ द करंट को एज्यूम नहीं किया है। अगर हम लोग उसको एज्यूम करेंगे, सो इट विल, अगर आप एज्यूम करते हैं, मतलब ये कि हमने यहाँ पे, अगर आप देख सकेंगे, सो यहाँ पे हमने क्या लिखा था, यहाँ पे हमने यहाँ पे क्या किया था, हमने आई नॉट की वैल्यू जो है 0 ले ली थी। इस वाले इक्वेशन में हमने यहाँ पे आई नॉट की वैल्यू 0 ले ली थी। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे आई नॉट रख करके, मतलब आई नॉट को 0 नहीं करेंगे, तो आपको जो है वो एक इक्वेशन मिलेगा, जो करंट का जो वेवफॉर्म का जो इक्वेशन मिलेगा, इफ वी कंसीडर आई नॉट माइनस कॉमा वी विल गेट आई ऑफ टी कैसा आएगा, V बाई आर, ठीक है, माइनस या प्लस, प्लस कैसा आएगा, V बाय, यहाँ पे हो जाएगा आई नॉट माइनस माइनस ऑफ V बाई आर ई टू द पावर माइनस ऑफ R बाई एल टी, ठीक है, ऐसा आएगा। ओके, ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप लिख लीजिएगा। अब इससे हम लोग क्या डिराइव करते हैं ये देखिए। सबसे पहले ये जो V बाई आर क्या है, ये फाइनल वैल्यू ऑफ द करंट है, मतलब इन टाइम t इक्वल टू इन्फिनिटी पे हमको V बाई आर मिल रहा था, जो कि हम लोगों ने इस ग्राफ से भी देखा अभी। ये देखिए, अगर हमने यहाँ पे डेरिवेशन में भी लिखा है, जब t इक्वल टू इन्फानाइट हो रहा था तो हमें जो वैल्यू मिली थी, क्या मिली थी, V बाई आर मिल रही थी, ठीक है। तो हम लोग उसको यहाँ पे यूज करेंगे, तो V बाई आर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, I एट इन्फिनिटी, ओके फाइन, प्लस आई एट 0 माइनस माइनस V बाई आर को फिर से आई एट इन्फिनिटी लिखेंगे एंड ई टू द पावर माइनस आर बाई एल टी। सो दिस इज नथिंग बट आई ऑफ टी। अब इसको मोर सिंप्लीफाइड वे में अगर लिखें तो ये हो जाएगा आई एट इन्फिनिटी प्लस आई एट 0 माइनस माइनस ऑफ आई ऑफ इन्फिनिटी, ओके, एंड ई टू द पावर माइनस ऑफ टी अपॉन टाउ, आई ऑफ टी। अगर हम लोग इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं तो टाइम कांस्टेंट फॉर्म में, तो ये ऐसे होगा। ये एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन है, इसको नोट कर लीजिएगा, ओके, वेयर टाउ इक्वल टू नथिंग बट एल बाई आर। ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको प्लीज़ नोट डाउन कर लीजिएगा और इसको अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। सिमिलरली हम लोग जो RC सर्किट है उसका भी रिस्पॉन्स देखेंगे कि उसका कैसा होता है, ठीक है। सो इट विल ऑल डिपेंड कि हम लोग कैसे कैसे आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़ है कि LR सर्किट जो होती है, एंड व्हाट टाइप ऑफ सर्किट इज दिस वन, दिस इज फर्स्ट ऑर्डर सर्किट, ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर सर्किट क्यों है कि उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, जस्ट वन। नंबर ऑफ एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट कितने हैं, वन है, इसीलिए फर्स्ट ऑर्डर सर्किट है। अगर इसमें कोई और भी एलिमेंट होता, मतलब कुछ एक्स्ट्रा, सपोज L के बाद C भी होते, तो दैट विल बिकम सेकेंड ऑर्डर सर्किट, क्योंकि उसमें L और C दो हो जाएंगे ना एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट्स। सो अभी हमने फर्स्ट ऑर्डर RL सर्किट का, सीरीज RL सर्किट का एनालिसिस देखा विद द हेल्प ऑफ लैप्लस ट्रांसफॉर्म। तो अगर लैप्लस ट्रांसफॉर्म नहीं यूज करते हैं तो आप एक सिंपल जो अप्रोच है डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का, उसको लगा करके भी इसको सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, ठीक है। तो उसको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमको इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना पड़ेगा,
जैसे कि एक बार मैं आपको एक अंदाज़ा देता हूँ कैसे होता है। अगर मान लीजिए हमारा इक्वेशन ऐसे है, dy बाई डी टी प्लस पी इंटू वाई, ओके, इज इक्वल टू क्यू। तो इसमें अपन क्या करते हैं, सबसे पहले आई एफ निकालते हैं ना, इंटीग्रेटिंग फैक्टर ई टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी इंटू डी टी करते हैं। उसके बाद जो हम लोग फाइनल सॉल्यूशन निकालते हैं क्या होता है, वाई इंटू आई एफ इज इक्वल टू इंटीग्रेशन क्यू इंटू आई एफ प्लस सी, ऐसे निकलता है ना। तो इसमें जब सी का वैल्यू निकालेंगे तो ऐसे करके भी निकाल सकते हैं अपन, बट मैं ज़्यादातर प्रीफर करता हूँ लैपलास ट्रांसफॉर्म का अप्रोच, क्योंकि लैपलास ट्रांसफॉर्म इजी है और रिजल्ट मतलब बखूबी अच्छे से देता है। इसलिए मैं भी लाइक आपको सजेस्ट करूँगा कि आप लैपलास ट्रांसफॉर्म का यूज़ करें, वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। सो इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल सी द रिस्पॉन्स ऑफ अ सीरीज आरसी सर्किट। सीरीज आरसी सर्किट का भी रिस्पॉन्स देखेंगे, सीरीज आरएल सर्किट का देख लिया आपने, और उसके बाद जब सीरीज आरएल सर्किट का जब हम लोग देख लेंगे रिस्पॉन्स, तो उसके बाद हम लोग देखेंगे, क्या देखेंगे, उसके बाद हम लोग देखेंगे उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस कुछ कुछ, ठीक है। तो ये चीज़ जो है आज इम्पॉर्टेंट था, इसको प्लीज़ आप एक नोटबुक में नोट डाउन कीजिएगा। मैं चाहता हूँ कि ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स में कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं रहनी चाहिए, एंड वी विल सी, ये बहुत ईजी है ना, बहुत ईजी है, एंड वी विल फाइंड आउट इन द नेक्स्ट वीडियो। Okay, we will solve some questions there. Okay, thank you.